Dear students, this chapter, the name is simultaneous equations. There are different methods to find the values of the different two variables. In simultaneous equations, there are two variables mainly, maybe the three variables, but in your standard, because this is for the beginners, so there are two variables and x and y, a and b's, other variables also you can take. There also the three methods are there. First method is the substitution method. Substitution method means how to find the values of x and y by using substitution method. जैसा कि नाम से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं, इफ यू हैव द इक्वेशन 2x plus y is equal to 3, 3x minus 2y is equal to 5. First of all, every equation you have to write the variables in the left hand side and the constant term in the right hand side. If any constant term is written in the left hand side, a variable in the right hand, then interchange means take all the variable in left side and all the constants in the right side. Thereafter, substitution method, you will use any equation. इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है. ये अच्छा भी रहता है क्योंकि बाद में अगर we have to use the any equation, then we can give the only the equation number. So you then there is no need to write whole equation. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम किसी से, जैसे हमने मान लो कि x की वैल्यू निकालनी है यहां से, if can you find the values of x from this equation in terms of y, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, पहले हमने ये y को उधर ले जाए, फिर उसके बाद 2 से हम डिवाइड करें, देन यू डिवाइड बाई 2. देयर इज अ फ्रैक्शन, डोंट वरी, फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, बट इफ यू राइट y ओनली इन द लेफ्ट हैंड साइड और 2x को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा. अब यहां पे फ्रैक्शन नहीं आया. easily that the variable which you can easily find, so you find that variable means y is equal to 3 minus 2x. अगर हम x निकाल दें तो you will get the in fraction, but if you will find the y then you will not get in the fraction. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें विदाउट फ्रैक्शन ही मिले, हमें फ्रैक्शन भी मिलेगा. जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2x प्लस वाई है, 3x, अगर यहाँ 2x प्लस 3y तो फ्रैक्शन मिलना ही मिलना है. दिस इज द मींस यू कैन नॉट अवॉइड द फ्रैक्शन. तो हम दोनों तरीके से बता दिए, इसलिए तो इसमें इजिली जिससे हम कर सकते हैं उसको निकाल लेना है. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन एंड यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1. y क्योंकि पता होना चाहिए कि कहां से हमने ये y की वैल्यू ली है या x की वैल्यू ली है. After finding y from equation 1, put the equation 3 and then putting the value of y from 3 in equation. अब कौन सी इक्वेशन बची है? 2 बची है, क्योंकि 1 से तो यही आया है. 1 में नहीं रखेंगे, दोबारा 2 में रखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में. तो you will put the value of y means 3 minus 2x इन इक्वेशन नंबर 2. अब कैसे रखते हैं इसको मैं बता रहा हूं आपको. 3x पहले लिख लें क्योंकि y की जगह रखना है, तो 3x लिख लिया हमने, -2 के लिए, और फिर ब्रैकेट यूज करोगे. ब्रैकेट, ऑलवेज यूज द ब्रैकेट बिकॉज इन प्लेस ऑफ y देयर आर 2 टर्म्स, तो ब्रैकेट यूज करना मस्ट हो जाता है. 3 minus 2x एंड y की जगह इज इक्वल टू 5, ये रहेगा. Then you can see this equation is only in terms of x. अब ये इक्वेशन सिर्फ x में हो गई. अगर x में हो गई तो अब हम इसको लीनियर इक्वेशन, जैसे तुम लोगों ने पहले चैप्टर्स किए हुए हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 8, तो दैट यू कैन सॉल्व इट. तो फर्स्ट यू सॉल्व द ब्रैकेट
means minus 2 you multiply to 3, so minus 6 minus 2 into minus 2x, so plus 4x. Multiplication should be correct with sign, क्योंकि एक भी साइन अगर गलत हुआ then you will not get the correct answer. Then 3x plus 4x, 7x addition minus 6 is equal to 5. This 6 you take that side, so 7x is equal to 6 plus 5, and then x, 7x is equal to 11, or x is equal to 11 by 7. This is the value of x. But after finding the value of x, you have to find the value of y also. तो कैसे y की वैल्यू मिलेगी? जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला था, पुटिंग द वैल्यू, क्योंकि इजिली उसी में किसी में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, बट इक्वेशन नंबर 3 इज इजियर देन दीज टू इक्वेशंस, तो उसमें भी डायरेक्टली y निकल आएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो जब हम 3 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन 3 माइनस 2x था. You will put this x is equal to 11 by 7. So 11 by 7. Y is equal to 3 minus 2 into 11 by 7. So y is equal to LCM you will take 21 minus 22 by 7 minus 1 upon. This is the value of y. So by this way you can find the value of x and y. Now I will take the one more example. Little bit difficult but not so difficult. केवल एक फ्रैक्शन में एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि तुम लोगों को ये हो जाए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आवे तो हम कर सकें. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y बाई 4 इज इक्वल टू 3 एंड 5x माइनस 2y is equal to 7. This is the question. You have to find the values of x and y. So equation number 1 and 2, you put the 1 and 2. Now you can see here, this is the 4 in fraction. So no need to worry. किसी में भी, यहां भी फ्रैक्शन हो सकता है, यहां भी by 3 by 2 कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम एंड मेक लीनियर. लीनियर का मतलब ऐसे बनेगा, मतलब नीचे कोई नंबर नहीं होगा. तो व्हेन यू कैन गेट द लीनियर, जब हम एलसीएम लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे तो वो लीनियर बन जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 से ले लें, टेक एलसीएम, तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. डायरेक्टली इसलिए कर दिया कि दिस इज नॉट द पार्ट सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे अगर हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 लिख के ऐसे कर दे रहे हैं. एलसीएम में 4 2 8, 8x minus 3y, नीचे 4 था, then 4 you can take there by cross multiplication. So this is the equation number 3. Now equation 1 अब नहीं लेना है तुमको क्योंकि ये आ चुका है, उसी से आया. अब इक्वेशन 2 and 3 यू सी, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया अभी कि जब हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है. तो यू कैन गेट द फ्रैक्शन इन दिस केस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे तुम इजिली निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y. जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें कोई भी निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ आर द सेम सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड डिजिट्स. तो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 2, वी टेक वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2. So what you will get, 5x is equal to this 2y, take that side 2y plus 7 and then x is equal to divide by 5. कभी भी डिवीजन और इधर से उधर ट्रांसफर करने में अगर एक भी साइन या कुछ भी गलत हुआ तो फिर आंसर नहीं आएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्रांसफर, व्हेन यू मल्टीप्लाई, व्हेन यू डिवाइड. अब x is equal to this इक्वेशन नंबर 4 जैसे हमने बोला था, this is taken from the equation number 2, हमने लिख दिया है. It means now you will not use the equation number 2, you will put the value of x in the equation number 3, क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, इस पे आना है. तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें. नाउ
we put x in equation 3 from 4 से 3 में पुट करना है। तो 3 is 8 bracket already means you have to use bracket क्योंकि 2 terms है यहाँ पे, and then close the bracket, 8x minus 3y is equal to 12. This is the equation. Now again you can see the equation is only in the terms of y, means you can find the y, but if fraction is there, तो अभी हमने क्या बताया, फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एंड व्हेन यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब इक्वेशन बनी हो, मतलब इक्वल साइन लगाओ तभी तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा ही कर सकते हैं। तो टेक द एलसीएम, तो 5 को एलसीएम में लेंगे यहाँ पे। अच्छा, एलसीएम के साथ साथ साइमल्टेनियसली यू कैन मल्टीप्लाई 8 इनटू दीज टू टर्म्स। 8 को 5 में ना कर देना कि ऊपर भी कर रहे हैं नीचे भी कर रहे हैं। तो 16y प्लस 56, अब माइनस 15y, क्यों y 15y, भाई एलसीएम भी लिया, 5 3 15 इज इक्वल टू 12। 16y माइनस 15y, y प्लस 56, अब 5 को उधर भी ले गए तो 60, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। Can you see? Yes, and it is very simple. After finding the value of y, can you get the value of x? And from which equation? From equation number 4, क्योंकि 4 में ही x is equal to था, क्योंकि 3 इक्वेशन तो तुम्हारी उसी में डाली है। तो 4th इक्वेशन में now we put y is equal to 4 in equation number 4। ये अच्छा, जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें सर्कल लगा देते हैं, इससे समझ में आता है कि वो इक्वेशन है, फिर हम चाहे लिखें या ना लिखें, नंबर लिखें ना, बट सर्कल में अगर हम उस नंबर को लिखते हैं तो यू विल मीन्स एनी बडी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू क्या था, 2y प्लस 7/5 था, इसी में y की वैल्यू रख दें, तो 2 इंटू 4 प्लस 7/5, क्या 7 प्लस 4 11 हो जाएगा? ये गलती ना करना कभी भी, वह यूज द BODMAS रूल। फर्स्ट यू मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 7/5 मीन्स 15/5 मीन्स 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बाय दिस वे यू कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ द x एंड y। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस वाज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। Now in the next video I will tell you about the elimination method. That method is very easy than substitution method, क्योंकि जब हम किसी एक मेथड को बताते हैं शुरू में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आती है कि शुरुआत है बिगिनर से, फॉर बिगिनर, लेकिन अब जब सेकंड मेथड बताएंगे तो यू विल फील इजी। ओके, थैंक यू।